Chapter 6, Triangles. This is Rupa Guha, and we are doing the concept of this chapter. This chapter is contributing 7 to 9 marks in your final board examination. So let's get started with the first thing, that is similarity of figures. Now, what do you understand by similarity of figures? So, two figures having the same shape but not necessarily the same size are called similar figures, right? And the next most important things are all congruent figures are similar, but vice versa may not be true. Now, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportional. So, difference between congruency and similarity, sides are in proportion, not equal, right? But angles are equal. So, major difference between similarity and congruency. Now, moving on to the next topic, that is very important topic, basic proportionality theorem, BPT, or it is called Thales theorem also. Students, make sure that you are very well versed with this theorem and the proof of this, because 90% you will see that most of the board examination has the proof of this. So make sure that you understand this topic very well. So what does it say? Just let's have a look at this. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, right? So let me start with the proof of this so that you will be able to understand better what you are trying to prove. So मेरे पास एक triangle है ABC and it is given to us that D is parallel to BC. Now, what I need to prove, what is BPT is asking us to prove, that is AD by DB will be equals to AE by EC. Now, construction में क्या करेंगे? Join कर देंगे. सबसे पहले join कर देंगे B to E and C to D, and then drop two perpendiculars. One is DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB. ओके, सो आपको समझ में आया बीपीटी क्या कह रहा है कि यदि एक ट्रायंगल में वन in between a line is parallel to the third side, that is D is parallel to BC, then that line is dividing the other two sides in a proportion, that is AD by DB will be equals to AE by EC. नाउ इसका अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कोई भी ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ बेस इनटू हाइट. सो इसमें बेस क्या लिया? AD लिया, तो हाइट क्या बन गया? EN. अब सिमिलरली नीचे वाला जो ट्रायंगल है BDE की एरिया निकालेंगे, सो इट विल बी हाफ DB इनटू हाइट सेम ही रहेगा बिकॉज इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो हाइट क्या होती है? बाहर आती है. तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू DB इंटू EN. दोनों को डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ, EN कट गया, क्या बच गया? AD बाई DB. इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बट बेस अब मैं AE लूंगी. सो हाफ इंटू AE इंटू DM हो गया. नीचे वाला एक ट्रायंगल लिया, दैट इज DEC, उसमें हाफ EC लिया बेस, हाइट अगेन सेम है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो DM बन जाएगा. दोनों को डिवाइड कर दिया, सो हाफ हाफ, DM कट गया, AE बाई EC बना. नाउ आप देख रहे हैं दीज टू ट्रायंगल्स. There is one concept that if two triangles are on the same base and between the same parallel lines, then their area is equal. So that concept we have used here. Triangle BDE and triangle DEC are on the same base DE and they are between the same parallel lines BC and D. Therefore दोनों की एरिया क्या हो जाएगी? इक्वल होगी. अब पहले वाले में 1 लिया था, ये 2, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गया. सो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो था ही, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. अब दोनों की वैल्यूज रेस्पेक्टिवली डाल दीजिए यहाँ पे. सो AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC. अब यदि मुझे किसी और तरीके से बीपीटी को लिखना है, सो आई कैन यूज द सेकेंड वे ऑल्सो. व्हाट इज दैट? AD बाई BD की जगह AD बाई AB भी लिख सकती हूँ
एंड AE के साथ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, so BPT very important concept and the proof is equally important, so make sure that you are very well you have understood this concept very well. Now moving on to the to one example, so that to understand this concept little better, the implementation of this concept. So a figure is given to us, and in that figure it is given PQ is parallel to BC, so apt for BPT. बिल्कुल BPT लगाने के लिए बिल्कुल सही circumstances है. And it is given AP by BP equals to 4 by 13, AC की वैल्यू 20.4 है. हमें AQ की लेंथ निकालनी है. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है फ्रॉम 2025. सो इसमें डायरेक्टली सॉल्व किया. यूजुअली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, गिवन टू प्रूफ लिखते हैं, बट सिंस दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व किया. अब ट्रायंगल ABC में इट इज गिवन टू अस दैट PQ इज पैरेलल टू BC, तो फटाफट BPT लगा दीजिए. दैट इज AP बाई PB विल बी इक्वल्स टू AQ बाई QC. नाउ इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, AP बाई PB की वैल्यू 4 बाई 13, सो AQ बाई QC भी क्या हो जाएगा, 4 बाई 13 हो जाएगा, राइट. सो एक वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज AQ बाई QC की वैल्यू मिल गई. सो दोनों का रेशियो कर दिया, क्या हो गया, 4:13. नाउ AQ और QC को मिला के क्या बन रहा है, AC, जिसकी वैल्यू 20/4 दे रखा है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेशियोज AQ की वैल्यू निकालनी है, तो 4 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दीजिए. रेशियो वाला पार्ट है 4 and 13 को, 4/17 इंटू 20.4. 17 से 20.4 को काट दीजिए, इट विल बी 1.2 एंड द फाइनल आंसर यू विल बी गेटिंग इज 4.8 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो स्टूडेंट्स, BPT आपने लगाना सीख लिया, देख लिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT. इसका भी कई जगह हम यूज़ करते हैं. नाउ इसमें क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब जो BPT जो प्रूफ कर रहे थे वो यदि गिवन है, देन आई विल से दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. इसको यदि इस फिगर में इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो क्या होगा, यदि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC दे रखा है, सो व्हाट कैन आई इन्फर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया जिसमें BPT भी लग रहा है और कन्वर्स ऑफ BPT भी लग रहा है. सो दिस इज अ फिगर इज देयर विच इज गिवन टू अस, दैट इज DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, और मुझे प्रूफ करना है EF is parallel to QR. ओके, तो सबसे पहले whenever something is given to you these type of questions, we start with given, फिर हमें प्रूफ क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रूफ. गिवन टू प्रूफ तो आपने लिख दिया. सबसे पहली चीज़, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, PQO लिया. इसमें DE पैरेलल टू OQ है, तो फटाफट BPT लगा देंगे. PE बाई EQ विल बी इक्वल्स टू PD बाई DO. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, PRO. इसमें क्या पैरेलल है, DR इज पैरेलल टू OR. सो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस, दैट इज DF बाई FR विल बी इक्वल्स टू PD बाई DO अगेन बाई BPT. मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट यू आर एसोसिएटिंग दैट स्टेटमेंट विद अ रीजन. सो ज़रूर रीजन लिखिएगा. अच्छा, इसको 2 मान लिया, पीछे हमने एक 1 मान लिया था. दोनों में आप क्या देखोगे, PD बाई DO कॉमन है. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई से, PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR. देखिए साइड्स के 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो क्या हो गया, बीच वाला EF विल बी पैरेलल टू, बीच वाली लाइन EF विल बी पैरेलल टू QR. सो दैट इज बाई कन्वर्स ऑफ BPT. 2 चीज़ें BPT से प्रूफ की और एक हो गया कन्वर्स ऑफ BPT. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस क्वेश्चन सॉर्टेड. नाउ मूविंग ऑन टू द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स होता था क्राइटेरिया, वैसे ही क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी है. सो पहली चीज़ पढ़ेंगे, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन 2 triangles, if corresponding angles are equal then those 2 triangles are similar by AAA similarity criteria. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं
कि जब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, थर्ड को करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। इसीलिए हमने इसी को और रिफॉर्म किया, ए को रिफॉर्म किया, क्या बना दिया, ए बना दिया, क्योंकि मुझे यदि दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स मैंने इक्वल कर दिए तो तीसरे की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट कॉन्सेप्ट आई हैव यूज्ड हियर। और यूजुअली हम 99% क्वेश्चंस में हम ए कभी नहीं लगाते हैं, हम ए ही लगाते हैं। सो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जब आप सिमिलर करते हो तो यूजुअली हम यही वाला सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो एक एग्जांपल भी ले लिया था जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लो। नाउ फिगर दे रखा है जिसमें ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल एंड diagonal BD bisects angle B and angle D both। दो चीजें प्रूफ करनी है, देख लीजिए आपको क्या प्रूफ करना है। दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2024। तो सॉल्यूशन में पहली चीज हम क्या करते हैं, क्या क्या मुझे गिवन है। तो BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को, तो दोनों एंगल्स को मैंने डायरेक्टली लिख दिया। क्या लिख दिया है, ABD, एंगल ABD is equals to एंगल CBD and एंगल ADB equals to एंगल CDB। और दूसरी चीज़, दो चीज़ें मुझे जो प्रूफ करनी थी वो आप ज़रूर लिख दीजिए। नाउ यू सी, जब मुझे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ABD और CBD, दो चीज़ें तो ऑलरेडी हो गई। ए से आपको दिख रहा है कि दोनों चीज़ें हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट विथ proving that the two triangles are similar, put the name of the two triangles, then write two things which are equal। so हमें ऑलरेडी पता है ये दोनों गिवन में ही था, हमारा दोनों इक्वल हो गया। सो दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नाउ बाय CPST क्या किया मैंने, AB by CB will be equals to BD by BD। BD by BD क्या हो गया, 1 हो गया। सो therefore क्या हो गया, AB equals to CB which is BC हो गया। So we have proved both the parts। Okay students, nailed this question। Moving on to the next similarity criteria which is let's see क्या है। If in two triangles sides of one triangle are proportional to, that is same ratio है to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, SSS क्राइटेरिया। तीनों साइड्स से सिमिलर है, then we say that two triangles are similar by SSS criteria। और नेक्स्ट लास्ट क्राइटेरिया ऑफ दिस है SAS। तो इससे नाम ही सजेस्ट हो रहा है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और उन दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल होगा यदि वो इक्वल होता है, सो देन सच अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज कॉल्ड SAS। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल, दैट इज SSS और SAS दोनों को मुझे यूज़ करना है। So sides AB, BC and the median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and the median PM of another triangle PQR। हमें प्रूफ करना है ABC is similar to triangle PQR and this is a 5 marker question from 2024। Now पहली चीज़ गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। So AB by PQ is equals to BC by QR equals to AD by PM, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल PQR। नाउ सबसे पहली चीज़ क्या किया कि AD और PM जो है दे आर मीडियंस, तो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सो क्या कर लिया, BD इज इसमें मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसको डिलीट कर दीजिए। सो BD की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ BC हो गया, QM इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। तो स्टूडेंट्स क्या किया इसमें, हमें ऑलरेडी गिवन था AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AD बाई PM। BC और QR दोनों के ऊपर हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ ऑफ BC अभी हमने क्या देखा, BD है, और हाफ ऑफ QR क्या हो गया, QM हो गया। सो
बेसिकली ये छोटा वाला जो दो ट्रायंगल है दैट इज ए बी डी एंड पी क्यू एम, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए हमारे, क्योंकि ऑलरेडी उसके तीनों साइड्स हमने इक्वल कर दिए थे, रादर प्रोपोर्शनल कर दिए थे. सो बाय एस 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 क्राइटेरिया ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम हो गया. नाउ जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी और एंगल क्यू बाई सी पी एस टी, दैट इज इन दोनों इक्वल हो गए बाई सी पी एस टी. अब मैंने लुकिंग इनटू द बिगर पिक्चर दैट इज ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसमें क्या लिया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर ले लिया एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ले लिया. सो ट्रायंगल ए बी सी किसके साथ सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ बाई एस ए एस क्राइटेरिया. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों चीजें टेक केयर कर लिया, एस 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 भी यूज कर लिया और एस ए सी सेम क्वेश्चन में. ओके सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो नेल्ड, 5 मार्क्स गॉट. एक और क्वेश्चन लिया था, आई थिंक आई यूज्ड यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एस ए एस यूज किया था शायद. लेट्स सी कि क्या चीज़ इसमें मुझे गिवन है और क्या क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया है. सो एक फिगर दे रखा है जिसमें ओ ए डॉट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी डॉट ओ बी दे रखा है और मुझे शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. दिस इज़ अ 2 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम 2025. तो जो गिवन है उसे लिख लीजिए, जो आपको प्रूफ करना है उसे हमने प्रूफ टू प्रूव में लिख दिया. नाउ स्टार्टिंग विथ हमें प्रूफ क्या करना है. सो ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी है. ओ सी को उधर से ओ ए के नीचे डाल दीजिए और ओ बी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आई. सो व्हाट वी गॉट, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ डी बाई ओ बी. ओके स्टूडेंट्स, और इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए वर्टिकली ऑपोजिट है, राइट. सो उसको क्या कर लिया, दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, छोटे एक ए ओ डी है और एक सी ओ बी है. दोनों में ये चीज़ तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी. और एंगल ए ओ डी और सी ओ बी कैसे हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट. सो जब सिमिलर हो गए तो सी पी एस टी से दो चीज़ें इक्वल कर ली, कौन सा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. Students, make sure that you are writing a perfect order. That is, AOD will be similar to only COB. There is no other way of writing it. So make sure that you are writing the correct order. Okay, students? So ये क्वेश्चन भी हो गया. एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का बचता है, that is, if we need to establish a relation between perimeter and the corresponding sides of two similar triangles, then what to do. Now, if two triangles are similar, it is already given to us, then the ratio of the perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding sides. That means that if triangle ABC is similar to triangle PQR, then क्या लिख सकते हैं, perimeter of triangle ABC divided by perimeter of triangle PQR will be equals to the corresponding side. या तो आप उसको ए बी बाई पी क्यू के बराबर लिख दीजिए, या बी सी बाई क्यू आर, या ए सी बाई पी आर. सो दिस कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली यूज्ड इन MCQ type of questions. So that is why I have taken an example. If triangle PQR is similar to triangle ABC, PQ, AB, and the perimeter of triangle ABC is given to us, we need to find the perimeter of triangle PQR. This is a 1 mark question from 2023. बट इसमें भी मैंने गिवन ये सब लिखा है, बट 1 मार्कर्स में यूजुअली आपको फटाफट सॉल्व करना होता है, राइट. सो इसमें मुझे निकालनी है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या किया, वाला फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू बाई ए बी. अब किस किस की वैल्यूज दे रखी है, ए बी की, ए बी सी की पेरीमीटर है 36, पी क्यू की वैल्यू 6, ए बी की वैल्यू 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आंसर आ गया 27. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. स्टूडेंट्स, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस भी बताए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी concepts better. So that is all for today. If you like my video, please share and subscribe. That is all for today. See you with my next video of the same chapter.